हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अनिरुद्ध एंड आई वेलकम यू एवरीवन टू माय चैनल द सिविल गुरुजी। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों के बाद और स्वैग से स्वागत है आप सभी का बहुत मेरे चैनल पे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम एबल टू मीट यू आफ्टर योर कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट बहुत सारे आ रहे थे कि सर नया वीडियो, तो कुछ टॉपिक्स जो आया है मेरे पास उसी के ऊपर मैं आपके सामने बहुत एक्साइटिंग और बहुत इफेक्टिव वीडियोस लाने वाला हूँ। एवरी वीक ऑलमोस्ट आई एम गोइंग टू try to deliver as much content as possible in this particular period of time. So please do consider subscribing this channel and do share this video with every student out there, because this video you can see is effective for all the students. Currently the mode of education has completely shifted from offline to online. So currently for online studies, what are the common mistakes that students actually, what I feel that what I see are committing and how to avoid these mistakes. So this particular things I'm going to discuss in this particular video. So stay tuned till the end of this video and do hit the like button and share this video with all your friends who are studying. Stay tuned. So the first thing I just wanted to talk about, it's not a mistake. I was just before going to the mistakes, first of all I would love to say all of you people that please eradicate this particular myth from your mind. Many people see like that, think like that actually कि ऑफलाइन में पढ़ाई बहुत अच्छा होता था, ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होता है. If you are preparing especially for competitive exams, frankly speaking, online is much better platform if you know how to utilize it, if you don't commit the mistakes that I am going to talk about right now over here. Suppose I am telling you, अगर आप लोगों के पास ऐसे मतलब वो ना तसल्ली देते खुद को. Some people who just want to lose the game before the game has started, they just want to pacify themselves by saying that yes, offline में माहौल अच्छा था, their environment was different, here it is. I agree, but एग्जाम तभी क्लियर होगा सर, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, जब आपके अंदर आग लगेगा, आपके अंदर वो जज्बा होगा, आपके अंदर वो जुनून होगी कि एग्जाम मुझे फोड़ना है, आपके अंदर वो मेहनत दिखाई देगा, irrespective of what is offline or online. Understanding this particular thing. And frankly speaking, that online is in some of the occasions it's much more advantageous in comparison to offline. मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद मैं मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा. One is your cost. सेकेंडली, आप घर बैठे सारी चीजें कर रहे हो. अभी तो कोविड का पहली बात माहौल है. दूसरी बात यह है कि आप घर बैठे सारे के सारे फैकल्टीज जो इंडिया के टॉप फैकल्टीज जस्ट लाइक ग्रेडअप में भी, तो यू कैन एक्सेस देम. पहले क्या होता था, ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट्स होते थे वो एक ऐसे जगह में होता था इन सम ऑफ द सिटीज लाइक प्रॉपर सिटीज, तो वहां पे नॉर्मली वही बच्चे जा पाते थे. अभी इंटरनेट सभी के पास है, एवरीबॉडी कैन एक्सेस इंटरनेट, तो वो गांव में बैठकर भी वही अच्छे फैकल्टीज के वीडियोस को एक्सेस कर पाता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड ऑल्सो योर द कॉस्ट, इट इज वेरी लेस, मच लेस कंपेयर टू योर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स. ओके, तो जय ऑनलाइन. सो यस, it again entirely depends upon you, but don't commit these mistakes. Number 1, that is your routine management or the time management, basically, where most of the people they fail. The most problematic thing that they face is that suppose they want to keep pace with the live classes. In most of the institutes, although the live classes, there is no scope of live classes. कुछ recorded सा videos आता है जो कि बहुत boring सा भी लगता है कुछ स्टूडेंट्स को, but in GradeUp, as we all know that it's India's largest live learning platform, तो live classes होता है आपको यहाँ पे. I would definitely recommend the students to come and join the class live for the better doubt clearings and stuff like that. But yeah, at the same time, if I say you that suppose if you are unable to do it due to some reason, for example 2-3 reasons I am citing you. For example, if you are a college going person, I mean if you are studying in your 3rd year, 4th year, whatever it is, and also if you are doing any job, and also suppose आपकी रात में अच्छी पढ़ाई होती है एंड सुबह क्लास है ग्रेडअप का, फॉर एग्जाम्पल एट 7 AM or 8 AM, सपोज इट्स क्लास इज देयर एंड you study well during the night, so simply can't manage. So don't just force yourself to do like that. Okay सर, मुझे करना है, सर ने बोले लाइव क्लास करने के लिए, जबरदस्ती कर रहा हूं मैं. उससे फायदा नहीं होता, उससे नुकसान ही होगा. 2-3 दिन बाद आपको इतना नींद आने लगेगा, फिर यू विल फील डिमोटिवेटेड, तो उससे उल्टा बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगा. So on that occasions I will say one very important point to you to avoid this particular mistake, that don't
It's not necessary that you keep your routine same as the institute's routine or GradeUp's routine. I'm not saying you to do that every time. It's possible. If it's possible, try to do it. If it's possible, it's very good. If it's not possible, then don't just force it. Force yourself actually. For example, you just try to focus on the number of hours that you are going to give it to you. For example, मैंने सोचा कि I am going to give 4 hours per day for my study. Okay, so 2 hours I will watch a video lecture. After 1 hour I will do revision. After that 1 hour I will do question practice. Or say 6 hours I can afford to give. So 3 hours video lectures, one say 2 hours, one is say 1 hour. How to give time to this video lectures, that I will also discuss. Stay tuned till the end of the session. It's going to be one of the most important sessions ever in my channel. I am saying this with guarantee. Focus on the number of hours. That okay, fine, sir. Or I'm not saying number of hours, but the time actually. So 4 hours, 6 hours I can afford to give. But this 4 hours, 6 hours is up to me. Which 4 hours? It may not be during the live classes, say 8 to 10. So मुझे भी 8 to 10 देना है, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है. वो 8 to 10 दे रहे, मुझे नहीं हो रहा है मुझसे वो. Okay, fine. So मेरा टाइम है for example 2 PM to 4 PM. ठीक है, मैं 2 PM to 4 PM कर रहा हूँ. After that I am giving 1 hour in several other intervals. और जो 6 hours अगर होगा तो रात में मैं कभी भी कर लूँगा. Something like that actually. That point I wanted to make. Okay. Second thing is your notifications. And it is really a pretty bad thing I would say. मतलब बहुत ही घटिया एक चीज़ है जो ऑफलाइन में कभी भी होने का चांसेस नहीं था. इट इज़ देयर इन ऑनलाइन, स्पेशली इफ़ यू आर स्टडिंग इट फ्रॉम योर फोन. तो फोन से अगर आप कर रहे हो नोटिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है. सर ये ऐप का नोटिफिकेशन, वो ऐप का नोटिफिकेशन. सो यू कैन डू बेसिकली 2 थिंग्स. You can turn on the focus mode in your phone. Focus mode is a mode which is available almost in all the devices, and also the digital well-being, you can check yourself, you can track actually that. And focus mode is one of the most effective things actually. You can see how to turn on the focus mode. I am just giving the link over here, so you just can see that particular video, that how to turn on the focus mode in your phone to avoid the notifications. Basically you can simply turn on the notifications from your phone, but that may also lead to some of the useful notifications also, right? So during the time when you are watching the class live actually, or watching the video lectures, so during that particular time you can turn on the focus mode by this method. So definitely you can watch that out. Okay, in the yes, I button, you can just click it and it will appear, right? So to avoid that, you can do 2 things. First of all is the focus mode. Second thing is that if you have an option to go with a laptop, I know that many students are there, many people are there for whom laptop is not an option, could not could not afford to buy a laptop or something like that. So for them mobile is the only option. So there are many apps also, which turns off the notification and also the focus mode that I've talked about, and they can do these particular things. But if you have a laptop, please make the use of that. Okay, it will give you a wider screen also, and that particular thing also it is going to be, unless you are traveling to somewhere without a Wi-Fi connection and something like that. Yeah, but you can definitely afford to go with a laptop where the distraction is comparatively less. Okay, comparatively less. I'm coming to distraction actually because I'm currently talking about the notification part only. The third point I am explaining. The third point is the point that is obvious after notification, that is a distraction. तो डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ों के वजह से होता है. स्पेशली वो चीज़ आता है जब आप मोबाइल से करते हो. मोबाइल में सारे ऐप्स हैं. पहली बात तो ये, वो जो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स उसको अनइंस्टॉल कर दो यार. बकवास है वो. क्या करोगे तुम? फेसबुक बोलो, इंस्टाग्राम बोलो, फालतू का चीज़ है यार. कभी कभी देखना है तो ठीक है भाई, फोकस मोड ऑन करके रखो या फिर टाइमर लगा के रखो ऐप में. दोनों चीज़ वीडियो पे डिस्कस्ड है, जो मैंने पहले उसका लिंक मैंने दे दिया था ऊपर. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा चलो उसका. ठीक है, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन. तो कैसे टाइमर लगाना, इस टाइम के बाद वो ऐप डोरमेंट हो जाता है, उसके बाद वो काम नहीं करता है. तो दैट थिंग ऑल्सो यू कैन डू. और सर अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो, बोलो सर लैपटॉप से भी तो हो सकता है. देखो, अगर आप खुद को कंट्रोल कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं कर पाते हो तभी इतने सारे सवाल आ रहे हैं. लाइक दिस नोटिफिकेशन टर्न ऑफ, टाइमर इन द ऐप, डिजिटल वेलबींग, फोकस मोड, साइड ब्लॉकर्स ऑल्सो. गूगल क्रोम में एक्सटेंशन में कुछ साइड ब्लॉकर्स आता है. जस्ट search in Google Chrome side blockers. So some of the distracting sites like Facebook, like Instagram, this kind of जो sites है actually, mainly Facebook जो आप कंप्यूटर में करते हो, लैपटॉप में,
वो ब्लॉक हो जाते, तो वो अच्छी बात है एक्चुअली। देखो इससे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, अपने ब्रेन में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सपोज यू आर थिंकिंग कि सर मैं थोड़ा देख लेता हूँ, ये जो लालच है ना ये बर्बाद कर देता है। आपको लग रहा है कि मैं आधा घंटे के बाद थोड़ा ही तो 5 मिनट के लिए फेसबुक देख रहा हूं, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे हमारा जो ब्रेन ऐसे प्रोग्राम्ड है ना, इसके अंदर वो 5 मिनट का असर बहुत ज्यादा होगा और वो अगले आधे घंटे के लिए आपको पुकार देगा, हमेशा अंदर से बोलेगा कि भाई देख देख देख। So that's why keep that option out of it. That's why I'm preferring actually laptop and something like if it is available, try to manage it out. ये हेल्प करता है। मोबाइल को दूर रखो, एकदम बहुत दूर रख दो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे जो ब्रेन है एक्चुअली वो इस तरीके से जो चीजें हैं जो आपको लुभाता है बार बार, क्या मैं फोटो अपलोड किया था, देखता हूं कितना लाइक्स आया, देखता हूं कि वो बंदी ने मेरे फोटो पे लव रिएक्ट किया कि नहीं। मतलब इस तरीके से जो फालतू का चीजें है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिमाग में कचरा भरता है, फालतू का एकदम चीजें, वो सब चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करो। मतलब कोई काम का चीज है ये नहीं, ओके। उससे काम का चीज अगर सोशल मीडिया करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां पे सारे के सारे जो क्लासेस है, मेरे लाइव जो फ्री क्लासेस है उसका लिंक अपलोड कर देता हूं मैं, तो आप इसको देख सकते हो कभी भी। जो प्रैक्टिस सेशन है मेरे फ्री, एब्सोल्युटली यू कैन वॉच इट बाय डाउनलोडिंग द ग्रेड अप एंड यूट्यूब तो है ही आपके पास। तो ये सब काम का चीज करो यार, इंटरनेट का फायदा उठाओ, ऐसे कचरा मत भरो दिमाग में। और वही मैं बात बता रहा हूं, वो 5 मिनट 10 मिनट आगे आने वाले आधा घंटे 1 घंटे को खराब कर देता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर ब्रेक्स। मोस्ट ऑफ द पीपल दे ऑल्सो समटाइम्स थिंक, स्पेशली इफ यू आर देयर इन अ लाइव क्लास, इसलिए मैं लाइव क्लास का इंपॉर्टेंस बता रहा था। इफ यू आर देयर इन अ लाइव क्लास एक्चुअली द टीचर ऑल्सो नोज हाउ टू हैंडल इट, इफ ही इज एन इफेक्टिव टीचर एक्चुअली, एफिशिएंट टीचर। वो नॉर्मली 1 घंटे के बाद मूड को थोड़ा हल्का करते हैं, क्लास के जो एनवायरमेंट है उसको थोड़ा बहुत लाइट करते हैं, फिर वो वापस आते। बट सर इन मेनी ऑफ द सिचुएशंस आई हैव सीन दैट लगातार 2 घंटे 3 घंटे क्लास होता है, और वो आप टीचर अगर है क्लास में, आप अगर कर रहे हो वो देख रहे हो, तो तब भी ये होता है। बट इफ यू आर स्टडिंग ऑन योर ओन इट बिकम्स जस्ट इम्पॉसिबल। ऑफलाइन में तो तब भी हो जाता था यार, बट इफ यू आर वॉचिंग इट ऑनलाइन 3 घंटे या 2 घंटे ज्यादा मेनली एक्चुअली, it becomes, especially 3 hours 4 hours, it becomes really very difficult if you are studying especially on your own। कोई लेक्चर आप देख रहे हो लाइव है तो चलो फिर भी ठीक है कि आप इंटरेक्शन कर रहे हो कुछ, दैट्स द एडवांटेज ऑफ ग्रेडअप एक्चुअली, कि आप कुछ भी इंटरेक्शन कर रहे हो, सर ये डाउट पूछ रहे हो आप, ये हो रहा है, तो एक इंटरेक्शन चल रहा है, सो यू कैन हैव दैट। अदरवाइज तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऑन दैट ओकेजन आई वुड से दैट प्लीज टेक ब्रेक्स। ब्रेक मतलब किस तरीके का ब्रेक, आप 1 घंटे पढ़ो, फिर 5 मिनट 10 मिनट के लिए ब्रेक लो, जो जैसे मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली। आप 1 घंटे पढ़ो, फिर 5-10 मिनट के लिए ब्रेक लो। ब्रेक लो मतलब क्या, ब्रेक लो मतलब फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम नहीं, ठीक है। वो आप लोगे दिन में मानो 2 बार देखे आप 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं। वो ऐप में टाइमर लगाने वाला थ्योरी में बता दिया हूँ, उससे ज़्यादा नहीं देखोगे आप। फिनिश हो गया तो फिनिश हो गया, आफ्टर दैट नथिंग इज एग्जिस्टिंग। सो आप इस तरीके से कर सकते हो। ब्रेक में आप क्या करो, गाना सुनो या फिर कुछ म्यूजिक, कुछ सूदिंग म्यूजिक आता है, आप गूगल में डाउनलोड करोगे, गूगल में सर्च करोगे सूदिंग म्यूजिक्स, और ऐसे भी म्यूजिक्स होते हैं, यूट्यूब पे भी होता है ऐसे म्यूजिक फॉर स्टडिंग। ऐसे आप सर्च करोगे तो वहां पे एक सूदिंग सा एक बैकग्राउंड में म्यूजिक बजता है, कोई गाना नहीं बजता उसमें, ओके। सो यू कैन एक्चुअली, इट हेल्प्स टू कंसंट्रेट। ये मैं देख चुका हूँ खुद के साथ, तो यू कैन एक्चुअली ट्राई दैट ऑल्सो आउट। तो वो कुछ देर के लिए आपने सुन लिया, 5-10 मिनट के लिए मन को थोड़ा शांत कर लिए, एंड देन अगेन यू केम बैक विथ डबल द विगर। सो दैट थिंग यू कैन do actually. Next point which I wanted to address is the problem in revision. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, एक बार लेक्चर को देख लिए और उनको लग गया क्या कि चलो सर लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, अब तो बहुत अच्छी बात है, मैंने 2 घंटा पढ़ लिया, सर ने बोले थे 2 घंटा पढ़ने के लिए, लाइव भी आ गया देखो मैंने। मतलब सर बहुत खुश हो गए। सर मैं खुश हुआ कि नहीं वो अलग बात है, सर को मैं खुश कर दिया, सर ने बोले 2 घंटे क्लास करने के लिए, मैं कर दिया, तो फायदा क्या हुआ भाई उससे। In offline classes especially, when I compare actually, in offline classes, those people who have attended my offline classes, they know कि मैं हर क्लास के बाद ऑलमोस्ट आधा घंटा रिवीजन कराता था, 15 to 20 minutes एटलीस्ट। जो लंबा क्लासेस हम लोगों का होता था वीकेंड्स एक्चुअली, 6 hours 7 hours of course including the breaks, even 10 hours 12 hours class I have taken। तो वहाँ पे सर क्लास के बाद मैं रिवीजन करवाता था, 12 बच्चों से पूछता था, सो दैट इट गेट्स एम्बेडेड इन द माइंड, जो ऑनलाइन में वो स्कोप नहीं है। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। तो कैसे इसको अवॉइड किया जाए,
अगेन आई हैव टोल्ड यू कि आप अगर 4 आवर्स दे रहे हो फॉर योर ओन स्टडी, 4 आवर्स मतलब चाहिए होता है दोस्त, एक्चुअली आपको मैनेज करना होगा। एंड स्पेशली अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप सैटरडे संडे ले लो कि उस दिन मैं रिवीजन करूंगा या क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। मतलब 4 घंटे जो मैंने बताया आपको, 2 घंटे फॉर क्लास 1 आवर, 2+1+1 और 3+2+1, यू कैन डू इंस्टेड वन थिंग। अगर आपको एकदम ही टाइम नहीं मिल रहा है तो यू कैन गो फॉर योर दैट, क्या बोलते उसको, तुम्हारे सैटरडे संडे रिवीजन और समथिंग लाइक दैट। हम तो ग्रेडअप में अभी वीकेंड बैच भी चालू कर दिए, तो आप वीकेंड में भी सिर्फ ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रियली रियली बेनिफिशियल। बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, तो हम लोगों का जैसे कि बैच नॉर्मली वीकेंड डेज प्लस वीकेंड्स चल रहा था, तो वो वीकेंड में भी अभी आ गया। तो यू कैन डेफिनेटली एनरोल जस्ट बाई गोइंग टू ग्रेडअप ऐप एंड कॉलिंग इन दिस नंबर। तो सर रिवीजन करने के लिए मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बताता हूँ, जो कि है सर फर्स्टली आई वुड से अबाउट योर कि 2 घंटे आपने देख लिए लेक्चर अच्छे से, थोड़ा ब्रेक ले लिए, शांत हो जाइए, कभी भी आप थोड़ा घूम फिर के आइए, थोड़ा गाना वाना सुन लीजिए। आफ्टर दैट प्ले दैट सेम लेक्चर विथ 2x स्पीड और 1.5x स्पीड, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी है, ये मुझे पता है, मैं भी कुछ चीज़ें सीखता हूँ मेरे स्टूडेंट से, तो उनको ये ट्रिक हेल्पफुल लगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वॉच दैट लेक्चर अगेन। आफ्टर दैट एक्चुअली डू वन थिंग, एक बार आपने लेक्चर अच्छे से देखा, लाइव अटेंड किया मानो, या फिर नहीं भी अटेंड किया, अच्छे से देख लिए, 1.5x 2x स्पीड में फटाफट हो गया लेक्चर। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, यू आर मेकिंग शॉर्ट नोट्स। हाउ टू मेक इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स, आई एम कमिंग अप विद दैट सेशन वेरी सून ऑन माई चैनल। उसमें कुछ बहुत ही खास टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते। ओके, द नेक्स्ट वीडियो इनफैक्ट इज गोइंग टू बी ऑन दैट ओनली। बट प्लीज़ अगर आपको चाहिए ये वीडियो, शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो, तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई वुड सिंपली लव दैट, तभी मैं बनाऊंगा यार। सेकेंड थिंग इज एक्चुअली योर स्क्रीनशॉट बहुत सारे लोग लेते हैं, जो लोग सीरियस है वो बाद में खोल के देखते हैं, जो लोग सीरियस नहीं है उसको नहीं देखते हैं वो चीज़। दैट्स वाई आई प्रेफर द शॉर्ट नोट्स ट्रिक्स एंड द लाइव नोट्स ट्रिक्स ऑल्सो, दैट वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन, थोड़ा आप शॉर्ट करके लिखते जाओ, बाद में उसको ही एक अच्छे से पेपर में, अच्छे से पेज में लिख दो, इस तरीके से फॉर रिवीजन। आफ्टर दैट यू गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। स्क्रीनशॉट से काम कुछ लोग चलाते हैं, अच्छा है, जो लोग कर पाते हैं इट्स गुड, आई वोंट से इट बैड, बट मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट हैपेंस कि वो स्क्रीनशॉट गैलरी में सिर्फ आपके स्टोरेज बढ़ाते हैं और कुछ नहीं। इफ यू आर डूइंग इट, इफ यू आर रियली राइटिंग और मेकिंग अ नोट आउट ऑफ इट, गुड, बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट, you know what you are doing. And the last but not the least, that is who is teaching you. बहुत ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को। एक्चुअली देखो, अर्लियर द नंबर ऑफ फैकल्टीज वॉज वेरी लिमिटेड, nowadays everyone is a faculty, especially after online platform actually, ठीक है। मतलब कोई एग्जाम वो क्लियर करे या ना करे वो फैकल्टी बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो बी केयरफुल। मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ों को। आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कि आप ग्रेडअप ज्वाइन करो एंड समथिंग लाइक दैट। यस, ऑफकोर्स मैं ग्रेडअप में हूँ तो मैं आपको ये बोलूंगा दैट प्लीज ज्वाइन ग्रेडअप, बिकॉज आई नो दैट मेनी गुड फैकल्टीज आर देयर इन ग्रेडअप एंड द मोस्ट अफोर्डेबल रेट। बट द पॉइंट इज दैट, मैं आपको एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ, go with the lecture of that particular faculty or faculties, जिसके लेक्चर अटेंड करने के बाद आपका क्वेश्चन बनता है। Suppose you have started solving previous year question. I'm not saying that every question you can make, but suppose you have joined a course, okay, suppose in GradeUp Super especially you are having that option to switch between different courses. So suppose I am teaching in one of the courses, environmental engineering, and suppose any other faculty X is teaching the same subject in any other batch, okay, or any other course within that GradeUp Super. Suppose मेरे से पढ़ के आपका अच्छा लग रहा है, आपको क्लास में बहुत अच्छा लग रहा है, बट दैट डज नॉट मीन एक्चुअली आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको वहाँ समझ में आ रहा है, आपको वाह क्या बहुत अच्छा पढ़ाता है। फिर आप क्वेश्चन करने गए, फिर क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे, एक भी क्वेश्चन मानो नहीं बन रहा है आपसे। अगर 50-60% क्वेश्चन बन रहा है दैट मीन्स इट्स गुड। या आई एम नॉट सेइंग कि आप एक ही बार में सारे क्वेश्चन लगा दोगे, दैट जनरली डज नॉट हैपन, बट आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू इफ इट हैपन्स। तो आपको मानो मेरी पढ़ाई से क्वेश्चन मानो नहीं बन रहा है आपका, मानो कोई फैकल्टी एक्स है जिसका पढ़ाना मतलब ठीक ठाक लगा आपको,
लेकिन क्वेश्चन बन गया सर, वो जो जो चीज़ें पढ़ा है एक्चुअली उससे क्वेश्चन आपका बन रहा है. ट्राई टू फॉलो दैट फैकल्टी ओवर मी. Getting my point. Getting my point actually. This is a very very important thing which I wanted to mention over there. बहुत ही ज़्यादा important point है ये. To choose the correct faculty or to choose the correct content provider. बहुत ज़्यादा important चीज़ है ये. क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट में भटकाने वाले बहुत सारे हैं, समझ रहे हो ना. आपको लगा वाह क्या अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे हाथ पैर हिला रहे, समथिंग लाइक दैट. आपको बहुत एंटरटेनमेंट सा फील हो रहा है, बट देखना कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं सर. एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर प्रीवियस ईयर लेके बैठो, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है. अगर बन रहा है तो उसके लेक्चर्स फॉलो करते रहो. अगर नहीं बन रहा है तो फिर इफ यू हैव द ऑप्शन टू स्विच द फैकल्टीज, डू दैट. समझ रहे हो? Okay, so those are the particular mistakes that I wanted to convey to all of you, and I have also told some of the remedies that you can follow. And please do let me know in the comment section if you want the video of the best tricks to make short notes. ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और ये वीडियो कैसा लगा बताना मुझे. एंड और क्या क्या चीज़ों पे वीडियो चाहते हो, दैट ऑल्सो यू कैन कमेंट मी. कमेंट जरूर करना इस वीडियो पे, लाइक कर देना और शेयर कर देना. एंड चैनल पे नए हो तो जरूर क्या कर देना दोस्त, सब्सक्राइब कर लेना. This is Aniruddha signing off. Until next video, stay safe.